Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7th poem Vocation from your book English Junction, publication Orient Black Swan. So before moving towards the explanation of this poem, as this poem is written by Rabindranath Tagore, a famous Bengali writer. So I'll just tell you about the author little bit. That Rabindranath Tagore is a famous Bengali writer also, and a poet also. He was also a philosopher and an artist also. He wrote many stories, novels, plays, beside composing a music also and many songs also. And one of the most important thing is that in 1930 he won the Nobel Prize in Literature, and the first Asian to win this prize. He was the only first Asian to win this prize for the book Gitanjali. For which book he received a Nobel Prize in Literature? For the book Gitanjali. For the book Gitanjali, he also wrote the Indian national anthem also. That is the everyone know who wrote the national anthem, Indian national anthem. So Rabindranath Tagore. Now we will come towards the poem Vocation. As this poem is all about a child thinking, first I'll give you little intro of this poem. That in this poem the poet speaks from the point of view of a small child. What the point of view of a small child for observing a thing, observing a situations. Here in this poem, actually the speaker does not want to go school. Speaker is a child only. He does not want to go to schools and craves the freedoms of the adults as he see around him. Here actually a small child is there. जो छोटे बच्चे होते हैं, दैट चाइल्ड व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्हें क्या लगता है मम्मी को कितना अच्छा है, मम्मी इज़ वेरी फ्री एंड मम्मी को पूरी लिबर्टी है, मम्मी को जब मन करता है सो जाते हैं, पापा को समटाइम यू ऑल्सो ऑब्जर्व, कभी आपके पेरेंट्स को अच्छा फील नहीं हो रहा, फील गुड नहीं हो रहा, पापा ने जस्ट फ़ोन उठाया एंड जस्ट ही कॉल्ड इन ऑफिस एंड से टुडे आई एम ऑन लीव, आई एम नॉट कमिंग. On that time what a child feel, उनको हमसे ज़्यादा liberty है, they are free, they are getting a more liberty. But here the child is not seeing the other part of this whole situation, that father has a lot of duty in his head, a lot of responsibilities, your school fees, household activities, groceries he also has to purchase, mother has also too many things to do, household works, she just wake up early in the morning, jaldi उठना, आपका breakfast बनाना, आपकी पढ़ाई करवाना, अगर working है and again some more works. So this thing child का जो थिंकिंग है वो इस पहलू में नहीं जा रहा. ही इज जस्ट थिंकिंग द ओनली फर्स्ट द गुड पार्ट ऑफ द थिंग, दैट द एल्डर्स रिसीव द मोर लिबर्टी, उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिलती है इन कंपैरिजन टू अ चाइल्ड. क्योंकि सुबह जैसे ही 10 बजता है, सुबह एक टाइम फिक्स्ड होता है हर एक स्कूल का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का. उस समय उस बच्चे को, छोटे बच्चे को स्कूल जाना होता है. एवरीथिंग हैज सेट, ये टाइम पे ये पीरियड होगा, इस टाइम पे ये पीरियड होगा. एट द एंड ऑफ द डे डिस्पर्सल टाइम इज़ ऑल्सो फिक्स्ड. छुट्टी का समय भी फिक्स्ड होता है कि वो उसको उसी समय पे घर पहुंचना है. So everything is a set. This all rule and regulations and the time boundation child don't like. So इस पोएम में आप यही पढ़ने जा रहे हो कि चाइल्ड को ऐसा फील होता है कि जो बड़े लोग हैं उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिलती है इन कंपैरिजन टू द लिबर्टी ऑफ अ चाइल्ड. दैट ओनली यहाँ पे इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है. बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. लेट्स रीड व्हाट इज़ हियर रिटन. फर्स्ट लाइन यहाँ पे हाइड हो गया है, सो आई विल ऑफ द कैमरा. So the first line is, when the gong sound 10 in the morning, I walk to the school by our lane. यहाँ पे जो speaker है वो child ही है. वो क्या कह रहा है? Gong sound. Gong sound means here, gong means a round piece of metal that sounds with a deep loud noise. When it hits with a stick, it is usually used to give a signal, for example 10 o'clock. कभी आप लोग ने देखा होगा पुराने ज़माने का वॉच जो होता है उसमें एकदम बड़ा सा घंटा होता है, वो आवाज़ करता है, एक एक घंटा जैसे होता है वैसे वैसे वो बेल देता है
तो उसमें एक आवाज़ आती है गोंग गोंग, यहीं पे यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। उस घंटे में, जो बड़ा वाला घंटा होता है, उसमें जब 10 बजता है घड़ी में, इट मीन्स कि चाइल्ड को यहाँ पे टाइम फिक्स है। आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन। लेन मीन्स रास्ता। यहाँ पर बच्चे को उस वक्त स्कूल जाना होता है, ये फिक्स है। जब घड़ी में 10 बजता है तो उस बच्चे को स्कूल जाना ही है। दैट इज अ फिक्स्ड हियर, दैट ही हैज़ टू फॉलो अ फिक्स्ड रूटीन। Afterwards, second line, every day I meet a hawker crying a bangles, crystal bangles. Here, every day I meet the hawker. Hawker you can say, जो रोड पे जो सामान घूम घूम के लोग जो बेचते हैं उन्हें हॉकर कहते हैं। इट डजंट, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सिर्फ चूड़ी का, क्रिस्टल मतलब कि कांच, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ जो है बेचने वाला जो है हॉकर, वो जो है बेच रहा है रास्ते में चूड़ियाँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर, जब रोज़ सुबह वो 10 बजे जाता है तो डेली वो चूड़ी वाले से को देखता है, मिलता है, मतलब वहाँ देखता है। यू कैन सी इन अ पिक्चर, ये हॉकर्स जो है रोज़ जो है चूड़ी बेचता रहता है। वही चाइल्ड यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। क्राइंग मीन्स यहाँ पे चिल्लाता है, एलिंग, यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। क्रैश बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ बेचता रहता है जब वो डेली स्कूल जाता रहता है। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। उसको कोई जल्दी नहीं होती है कहीं जाने की, जैसे कि इस बच्चे को जल्दी है कि स्कूल उसको टाइम पे पहुंचना है। बट व्हाट ही ऑब्जर्व दैट हॉकर इज नॉट इन अ हरी टू रीच एनी डेस्टिनेशन, उसे कोई जल्दी नहीं है कहीं जाने की। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और उसको ये कुछ फिक्स भी नहीं है कि वो हर रोज़ उसी रोड पर जाएगा, कोई रोड फिक्स नहीं है, वो किसी भी कहीं भी जा सकता है। एज अ चाइल्ड हैज़ अ फिक्स्ड लेन टू गो स्कूल, लेकिन बच्चे को एक फिक्स रास्ता है स्कूल जाने का। बट यहाँ हॉकर के लिए कोई रोड फिक्स नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। दैट लिबर्टी इज लाइक्ड बाई द चाइल्ड। एंड फर्दर व्हाट ही से, लिसन, what he said further, no place he must go to, no time when he must come home. उसके दैट हॉकर जो चूड़ी बेचने वाला है उसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई रोड का बाउंडेशन नहीं कि वो उसको बस वही एरिया में जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम, तो यहाँ पे वो कहीं भी जा सकता है, कभी भी घर वापस आ सकता है। एज चाइल्ड हैज़ अ फिक्स्ड टाइम टू रीच होम। सम टाइम व्हाट हैपन, आप लोग को कभी कुछ स्कूल का, सपोज जो आपका 4 बजे इवनिंग में स्कूल छूटता है या 3 बजे स्कूल छूटता है, विद इन हाफ एन आवर आपको घर पहुँचना होता है। अगर आप कभी थोड़ा लेट हो जाते हो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स लेट होते हो, दैन योर मदर फादर स्टार्टेड कॉलिंग एंड सर्चिंग, कहाँ है, आपके घर आएगा, स्टार्टेड सर्चिंग यू। तो क्योंकि डेली योर टाइम पीरियड, टाइम इज़ अ फिक्स्ड, आपका डेली टाइम फिक्स्ड है कि आपको यही टाइम पे पहुंचना है। सो यहाँ पे ये चाइल्ड को क्या अच्छा लग रहा है कि हॉकर को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। कभी आप लोग कभी लेट हो जाते होगे, स्कूल से घर लेट आते होगे, तो मम्मा स्टार्टेड आस्किंग ना व्हाई यू आर लेट, हाँ व्हाई यू आर लेट, व्हाई रियली यू आर कमिंग ऑन दिस टाइम, व्हाट यू आर डूइंग, हाँ सब कुछ पूछने लगते हैं। मम्मा पूछने लगते हैं क्यों लेट हुए, क्या बात था, व्हाट्स द रीज़न, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो दैट ऑल थिंग्स, क्रॉस क्वेश्चन इज, ये सब ये हॉकर से पूछने के लिए कोई भी नहीं है। नोबडी इज स्टैंडिंग देयर टू स्कोल्ड दैट हॉकर, उसको डांटने के लिए भी कोई नहीं है। दैट्स वाई द चाइल्ड लव द लाइफ ऑफ अ हॉकर एंड फर्दर एट लास्ट ही सेड आई विश आई वर अ हॉकर। एट लास्ट में क्या कहता है, काश मैं भी हॉकर होता, काश मैं भी हॉकर होता, आई विश आई वर अ हॉकर बन जाता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, सारा दिन रोड पे बिताता, क्या करते हुए, चिल्लाते हुए कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स में चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, सारा दिन वो बैंगल्स बेचते हुए ही स्पेंड करता। सो दैट्स वाई द चाइल्ड इज जस्ट सीइंग द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ हॉकर, इसलिए उसे हॉकर की लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा in this poem you have a 3 stanza. Each stanza there is a different person. That the first stanza is about a hawker, second stanza you are going to read about a gardener,
एंड अ थर्ड स्टैंजा इज अबाउट अ वर्क ऑफ अ वॉचमैन. उसे दैट चाइल्ड को किस किस का वर्क अच्छा लगा. फिर क्या होता है, एंड इवन इट इज़ डिवाइडेड बाई अ डे ऑल्सो, मीन्स यहाँ पे मॉर्निंग टाइम. फर्स्ट स्टैंजा इज ऑल अबाउट अ मॉर्निंग टाइम. जब सुबह सुबह वो स्कूल जाता है तो क्या किसको देखता है, क्या फील करता है, क्या बनना चाहता है. सेकेंड स्टैंजा जो है इसका आफ्टरनून का है, गार्डनर के बारे में है. एंड इवन इवनिंग का भी टाइम का एक्सप्लेनेशन है थोड़ा. इवनिंग का क्या कि व्हेन द चाइल्ड इज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, तो आफ्टरनून में वो गार्डनर को देखता है. देन व्हाट ही फील्स, क्या फील होता है, कैसा लगता है. एंड इन थर्ड स्टैंजा देयर इज अबाउट अ वॉचमैन, ये नाइट का है. तो ये पोएम एक तो 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और 3 पार्ट में डिवाइडेड है. दिन के 3 जैसे पहर होते हैं वैसे सुबह, दोपहर और रात करके यहाँ डिवाइड किया गया है. और 3 लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन है. पहला है फर्स्ट स्टैंजा में about hawker, second gardener, and third stanza is about a watchman life. So now we are going to read about the life of a gardener. So यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि when at 4 in the afternoon, at 4 in the afternoon, यहाँ 4 से मतलब है टाइम, 4 बजता है दोपहर का. I come back from the school, ये स्कूल से वापस आता है. आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल. आई कैन सी दो थ्रू द गेट एट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. तो क्या देखता है जब स्कूल से वापस आता है, तो देखता है कि जो गार्डनर है, जो माली है, डिगिंग द ग्राउंड. डिगिंग मीन्स खोदना, ज़मीन को खोद रहा है बैठ के. मीन्स वो माली है तो वही पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहा है गेट के पास ही बैठ कर. गेट ऑफ दैट हाउस, हाउस के गेट पे जो है मट्टी खोद रहा है, ग्राउंड जो है खोद रहा है. यू कैन सी इन अ पिक्चर ऑल्सो हियर. he does what he likes with his spade. स्पेड इज़ अ टूल यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड. जैसे कि मोस्टली घरों में आप लोग के पास खुरपी के जैसा एक ट्रायंगल के जैसा लोहे का होता है, पीछे लकड़ी का स्टिक लगा होता है. उसे हिंदी में खुरपी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो स्पेड मीन्स टूल्स यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड. एक ऐसा औजार जो मिट्टी खोदने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए यूज़ किया जाता है. गार्डनर ने हाथ में भी पकड़ा हुआ, यू कैन सी, इसे हम स्पेड बोलते हैं, स्पेड. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, क्या देखता है, ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड्स. मतलब उसे बच्चा क्या सोचता है, वाह गार्डनर की लाइफ कितनी अच्छी है, उसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है. ही सॉयल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट. ही सॉयल्स हिज क्लॉथ्स मीन्स हियर, यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि सॉयल जो होता है, मट्टी में अगर कुछ गिर जाए तो वो गंदा हो जाता है. तो यहाँ पर बोलने का मतलब है उसके कपड़े में सॉयल्स, मट्टी लग रहा है, मड लग रहा है, डस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है. नोबडी इज देयर टू आस्क टू द गार्डनर, nobody takes him to task. थर्ड लाइन इज nobody takes him to task. टास्क से है इंक्वायरी यहाँ पे. इफ ही गेट baked in the sun or wet and gets wet. यहाँ पर टास्क से है इंक्वायरी करने के लिए, कोई नहीं. इंक्वायरी मतलब कोई उससे पूछने के लिए नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए नहीं है उस गार्डनर से कि तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हुए हैं मट्टी से, तुम सारा दिन बेक्ड इन द सन, मतलब पूरा टाइम, बहुत लंबे टाइम से सन धूप में काम कर रहा है. हम लोग अरे धूप लग जाएगी, हम लोग कभी बाहर जाते हो आप लोग, मम्मी लोग बोलने लगती है ना पीछे से, ए धूप में नहीं रहो, धूप लग जाएगा, ए कपड़े गंदे नहीं होना चाहिए, ए गीले हो गए, क्यों गीले हो गए. एवरी टाइम मदर्स स्टार्टेड आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक दिस. एज अ मदर आई टू डिड दिस, बट हियर गार्डनर से कोई भी नहीं है कुछ पूछने के लिए वहाँ पे कि क्यों तुम्हारे कपड़े गंदे हुए मट्टी से, क्यों तुम सुबह से यहाँ बैठ के खोद ही रहे हो मट्टी और गार्डन को डिग कर रहे हो, खोद रहे हो, क्यों यहाँ दिन सुबह से इतना कड़ी धूप में खेल, मतलब जैसे आप लोग खेलोगे तो आपको डांट पड़ेगी, पूरे कड़ी धूप में यहाँ मट्टी खोद रहे हो, उसके कपड़े गीले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं. नोबडी टेक्स हिम अ टास्क मीन्स कोई भी उससे आके पूछने वाला नहीं है. नोबडी इज देयर टू स्कोल्ड एट अ गार्डनर, कोई इससे कुछ भी नहीं कहेगा. तो इस पार्ट को सोचते हुए, आफ्टर थिंकिंग दिस पार्ट, again the child wish I were a gardener digging away in the garden with nobody to stop me from a digging. So what he wished, I were a gardener, मैं gardener ही बन जाता तो अच्छा रहता.
अवे इन द गार्डन, कहीं गार्डन में जो है मट्टी दिन भर खोदता रहता, कोई भी नहीं होता मुझसे कुछ पूछने वाला यहाँ पर कि मैं ये क्यों खोद रहा हूँ, क्यों मेरे कपड़े गंदे हुए, क्यों गीले हुए, और मैं जितना टाइम मन करे वहाँ पे रह सकता था. दैट्स वाई आफ्टर सीइंग दिस पार्ट ऑफ द थिंग, दिस पार्ट ऑफ दैट गार्डनर्स लाइफ, दैट अ चाइल्ड विश टू बी अ गार्डनर इन अ सेकेंड स्टैंजा. Okay, next one is the third and the last stanza. This poem is a very beautiful poem. I love to explain this. Okay, the third, as I told you, is about a watchman. पहले ही बताया था. So here the first line is started. Just as it get dark in the evening, and my mother sends me to bed. So many times I explain you, अगर evening के साथ dark world relate हो रहा है तो यहाँ late night की बात होती है. इवनिंग मीन्स शाम के समय थोड़ी रोशनी होती है, बट यहाँ पर अगेन जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग, शाम के समय डार्क हो गया मतलब कि रात हो गया है अब. एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, उसकी मम्मी उसको कहाँ भेज रही है, बेड पे भेज रही है. क्यों भेज रही है, सोने के लिए. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, सो ये जाके सोता नहीं है बेड पे, विंडो ओपन है, वहाँ से क्या देखता है. लेट्स सी व्हाट्स रिटन हियर. द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन जो चौकीदार है, वॉचमैन जो है चौकीदार है, वो क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, पहरा दे रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है सब कुछ. द लेन इज डार्क एंड लोनली, लेन मीन्स रास्ता, वो रास्ता कैसा है, डार्क है और लोनली है, क्योंकि रात का समय है, सब लोग सोने जा चुके हैं या सोने की तैयारी में है, तो रास्ते पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, एंड वो बिल्कुल खाली रास्ता है. एंड द स्ट्रीट लैम्प, एंड द स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प किसे कहते हैं, जो रोड एरिया में जो लाइट लगी होती है उसे स्ट्रीट लैम्प बोलते हैं. स्ट्रीट मीन्स रास्ता, लैम्प मीन्स वही लाइट, तो रास्ते में लगे हुए लाइट को बोला जा रहा है यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प. स्टैंड लाइक अ जैंट, जैंट मीन्स अ मॉन्स्टर, बहुत बड़े राक्षस के जैसे लग रहा है, जो कि विथ वन रेड आई ऑन इट्स हेड. तो स्ट्रीट लैम्प में जो रास्ते में जो लाइट होता है उसमें ऊपर बहुत लंबा होता है ना उसका रॉड जो होता है जिसमें लाइट लगी रहती है, तो उसमें जो लाइट जल रही है वो रेड कलर की लाइट जल रही है. तो इसको ऐसा लग रहा है चाइल्ड को कि वो उसे एक मॉन्स्टर, एक ज़ियान मीन्स राक्षस, एक बहुत बड़े राक्षस के जैसे लग रहा है, जिसका सिर्फ एक रेड कलर का आँख जो है हो, और वो भी उसके हेड पर हो. विथ वन रेड आई ऑन इट्स हेड, जिसके सर पे एक ही रेड कलर का एक आँख हो, एक बहुत बड़े राक्षस के हेड सर पे उसे. स्ट्रीट लैम्प एक ज़ियान के जैसे लग रहा है जिसका एक आँख उसके सर पे जल रहा हो. सो यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन्स एंड वॉक. स्विंग मीन्स झुलाते हुए, ऐसे ऐसे स्विंग 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 हिज लालटेन एंड वॉक, अपने लालटेन को हिलाते हुए जो है वॉक कर रहा है. विथ हिज शैडो एट हिज साइड, और उसके साथ में क्या है, उसका शैडो उसके साथ साथ है. विथ हिज शैडो एट हिज साइड, उसके साइड में उसका शैडो है उसके साथ, और कोई भी नहीं है. एंड नेवर वंस गो टू बेड इन हिज लाइफ, एंड वॉचमैन कभी भी अपने लाइफ में बेड पे नहीं जाता है, वो सारी रात जो है पहरेदारी करता है, वॉचिंग करता है. एज हिज वर्क इज ओनली अ वॉचमैन, ही इज एज अ प्रोफेशन इज अ वॉचमैन. तो बच्चे को, चाइल्ड को ये अच्छा लग रहा है कि उसके वॉचमैन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. यहाँ पे आई विश नहीं बोला गया है एंड में, बट हियर द चाइल्ड ऑल्सो लाइक्स द वर्क ऑफ अ वॉचमैन, क्योंकि जैसे कि उसकी मम्मी ने उसको बोला कि आफ्टर दैट नाइट उसकी मम्मी ने उसे सेंड किया था, माई मदर सेंड मी टू बेड. उसको एक यहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शंस है कि अब रात हो गई, अब तुमको सोना ही है, लेकिन वॉचमैन को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दैट्स व्हाई ही लव द लाइफ ऑफ वॉचमैन. क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि एज अ प्रोफेशन ही इज़ अ वॉचमैन. यहाँ पे ये जो है पोएम जो है फिनिश होती है. एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगी, यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस थिंग नहीं देख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव देख रहा है, क्योंकि ही इज़ अ चाइल्ड, ही डोंट हैव टू मच ऑफ दैट एक्सपीरियंस कि दैट वॉचमैन है, चाहे गार्डनर है, एंड हॉकर, देयर इज अ compulsion to do that type of thing. They all have a compulsion, even that compulsion should be comes under their family pressure, financial pressure, ये सब कुछ है. They are bounded to do that type of work only, even sometimes they are not well, but still they have to go because they earn as a daily wages. डेली वो कैसे कमाते हैं, डेली की कमाई पे उनका घर चलता है. तो इसका एक अदर पार्ट ये भी है कि वो बाउंडेड है, उस काम को करने के लिए बाधित है
उस वॉचमैन का कभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वॉचमैन को पूरी रात भर जगना पड़ता है. समटाइम्स ही डोंट वांट्स टू वेक इन अ नाइट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, लेकिन उसको जगना पड़ता है क्योंकि उसका वो काम है. वो नहीं करेगा, उसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसका फैमिली भूखा रहेगा, क्योंकि उनको मंथली वेजेस नहीं, वो डेली काम करेंगे. डेली चूड़ी वाला, बैंगल्स वाला जो है, अगर बैंगल नहीं सेल करता है डेली तो उसको पैसा नहीं मिलेगा. ही इज़ नॉट गेटिंग एनी मनी. तो फिर उसके घर कैसे चलेगा? सो ही इज़ बाउंडेड टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, इसलिए वो बेचता है. And gardener is also sometimes the same situation, financial pressure, family pressure, that sometimes they are not feeling well, but still they have to do. There is the other negative part of these things, that a child don't know that they are bounded to do that type of work, but child only thinks about the good things, that they don't have any pressure. They just sells the bangle, the gardener is just digging the ground at a whole day. Nobody comes to scold him. Even the watchman walks anywhere in the night, nobody comes to say to sleep to that watchman. That's why child wish to be sometimes to be बैंगल्स वाला बनना चाहता है, सेकेंड टाइम गार्डनर, एंड थर्ड टाइम वॉचमैन. Okay, so I hope you understood this poem, and soon I will make the video of poetic devices and rhyme schemes of this poem also. So thank you for watching my video. Thank you.